If no one shows the light, don't feel you are unfortunate. If no one shows the light, if they all shut their doors on you on a dark and stormy night, if they all shut their doors on you on a dark and stormy night, let thunder and lightning set your soul on fire, and in the blazing light you burn alone. Set your soul on fire, and in the blazing light you walk alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো রে। देश को सलाम सलाम, देश को प्रणाम प्रणाम। ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। जागा हुआ है हिंदुस्तान, जागे हैं चांद सितारे, रोशन हुआ है दिल मेरा, सुभाष जी हमारे
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে, কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে, ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জেগে। সবাই মিলে একসাথে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না তো তুমি, দেশ का এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি। সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ধন্যবাদ জানাই সমস্ত শিল্পীদের এবং আমাদের আনুষ্ঠানিক পর্বের এরপরেই শুরু। আমরা অপেক্ষা করব মঞ্চে আসনগুলি নিয়ে আসার জন্যে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় রাজ্যপাল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উপস্থিত আছেন ভারত সরকারের মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী, মাননীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবহন মন্ত্রী। এরা সকলে মঞ্চে উঠলে আমরা আমাদের আনুষ্ঠানিক পর্বের সূচনা করব। সেই সঙ্গে বলে রাখি যে আজকের এই পড়ন্ত বিকেলটি নিশ্চয়ই সকলের স্মরণে স্বর্ণস্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। এরকম একটি সৌধ, এই সৌধর প্রেক্ষাপটে আজকে এমন একজন মহান জননায়কের আমরা ১২৫তম জয়ন্তী পালন করছি। আমরা অপেক্ষা করছি মঞ্চটি প্রস্তুত করে নেওয়ার জন্যে, এবং মঞ্চ প্রস্তুত হলেই আমরা আমন্ত্রণ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনকে মঞ্চে আসার জন্যে। तो स्वागत है मंच पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ जी का। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी का। সেই সঙ্গে ভারত সরকারের অপর দুই মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাবুল সুপ্রিয়, শ্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল। আমরা একদম শুরুতেই অনুরোধ জানাবো ভারত সরকারের সংস্কৃতি এবং পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেলকে স্বাগত ভাষণ দেবার জন্যে। अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे माननीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल को कि हमें स्वागत भाषण से संबोधन करें। पूज्य नेताजी के 125वीं जयंती के इस उत्सव पर पराक्रम दिवस के इस पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदैव प्रधानमंत्री जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपने पराक्रम दिवस के रूप में पूज्य नेताजी की इस जयंती को घोषित करने की जो अनुमति दी है, इस बात के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपने इस पहले कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अनुमति दी है,
और आप यहाँ उपस्थित हैं, इस बात के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बंगाल के आदरणीय राज्यपाल आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, पश्चिम बंगाल की आदरणीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी आदरणीय बाबुल सुप्रियो जी, और आज इस कार्यक्रम की जो उत्सव मूर्ति है जिन्हें 100 वर्ष पूरे किए, INA के नायक आदरणीय लालती राम जी, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज का दिन वास्तव में उन तमाम आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के लिए समर्पित है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो परिवार से सर्वजीत ढिल्लो जी, आदरणीय पूर्णिमा ढिल्लो जी, एक और बड़ा नाम जिनसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिल चुके हैं, आदरणीय आशा सहाय जी, जिन्हें लोग भारती चौधरी जी के नाम से जानते हैं, BN पांडे जी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये हमारे जीवित स्मारक हैं। इस आज के दिन में मुझे इस बात का अवसर मिला है संस्कृति मंत्री होने के नाते कि मैं मंचस्थ अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन तो करूं, साथ में इस बात का संदेश भी देश के सामने जाना चाहिए। 125 वर्ष की यह यात्रा, जिसमें वास्तव में नेताजी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो शायद स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आज एक गोष्ठी चल रही थी, तब मैंने एक बात मेरे मन में आई। मैंने कहा कि सोच, शोध और खोज तीनों नेताजी के बारे में हमें पूरा करने के बाद ही शायद हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर पाएंगे। और मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उनके जन्म स्थान पर कटक में भारत के पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। हरिपुरा गुजरात में, जहां पर नेताजी को पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने जाकर वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की है। यहाँ पर स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ आज के दिन इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वाक्य मैं ज़रूर कहूँगा। नेताजी ने कहा था एक समय कलकत्ता से दिल्ली चलो, दिल्ली कूच करने की बात कही थी। जब संकल्प सकारात्मक और शक्ति वाला होता है, शायद इसी को पराक्रम कहते हैं। आज स्वयं दिल्ली कलकत्ता की धरती पर आकर नेताजी के चरणों में नमन कर रही है। मुझे लगता है यही आज के दिन की सफलता है। मैं फिर से सभी मंचस्थ अतिथियों का और सामने बैठे हुए हमारे उन जीवित स्मारकों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মন্ত্রীকে। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। আপনাদের সকলের কাছে আমরা সহযোগিতা প্রার্থনা করি। এইবারে
আমরা একে একে কিছু উদ্বোধনে যাব। 1926 থেকে 1938 এই সময়কালে নেতাজির লেখা মহামূল্যবান চিঠির সংকলন করা হয়েছে একটি গ্রন্থের আকারে। এই গ্রন্থটি 3টি ভাষায় নেতাজির চিঠিপত্র নামাঙ্কিত এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। हिंदी में, सरल हिंदी में मैं कहना चाहूंगा, हम अनुरोध करेंगे आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि लेटर्स ऑफ नेताजी फ्रॉम 1926 टू 1938 जो 3 भाषाओं में बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी में है, इस किताब का अनावरण करें। এই গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশের মুহূর্তটিকে আমরা করতালি দিয়ে চিহ্নিত করলাম। এরপরে আমরা চলে যাব নেতাজির এই বিশেষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রস্তুত হয়েছে একটি স্মারক মুদ্রা। সেই স্মারক মুদ্রাটি নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এটি জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য। फिर से मैं हिंदी में कहना चाहूंगा, इस अहम अवसर पर हमारी गुजारिश रहेगी कि नेताजी पर ढाली सिक्के का लोकार्पण करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। প্রকাশিত হলো এই স্মারক মুদ্রা। এরপরে আমরা চলে যাব আরেকটি মুদ্রা প্রকাশ করা হচ্ছে এবং এছাড়াও এই 125তম জয়ন্তী উপলক্ষে একটি বিশেষ ডাক টিকিট প্রস্তুত করা হয়েছে, সেটির প্রকাশের জন্যে